Last opportunity for all UPSC aspirants to win Apple MacBook, iPad Mini, AirPods and amazing Amazon vouchers. Unacademy लेकर आया है आपके लिए Unacademy Combat, इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप compete कर सकते हैं इंडिया के लाखों एस्पिरेंट्स के साथ। इसमें आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस और क्विज के बाद एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चन के 6 राउंड्स होंगे, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे। एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, उस पर रजिस्टर करें, अपना गोल यूपीएससी सीएसई सिलेक्ट करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे दोबारा क्लिक करें। हमारा कोड यूज करें और बिल्कुल फ्री में एनरोल करें। ये 6 दिसंबर सुबह 11 बजे होने जा रहा है, जिसमें अब कुछ ही घंटे बचे हैं। बिना टाइम वेस्ट कीजिए, बिना देरी के एनरोल करें और अपना नॉलेज टेस्ट करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। Hello friends, welcome to Mission IAS. In this video I am going to explain the most expected MCQ for your upcoming prelim exam 2021 that will be going to be held on 27th June, right? So first question, consider the following statement with respect to the National Food Security Act 2013. It is mandated that identification of eligible households should be done using socio-economic and caste census. Second, the Act provides for the setting up of National Food Commission and State Food Commission at the center and state respectively. Third, both the central and state governments are empowered to fix the prices at which the food grains are to be made available under the National Food Security Act. So, which of the statements given above are not correct? Not correct पूछा है। So its answer is all the given statements. तीनों ही statement incorrect है, because ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं, बल्कि every poor person will be entitled to get this benefit Food Security Act. So near 50% of urban population and 75% of the rural population will be covered under the National Food Security Act that was launched by the UPA government, right? तो इसका आंसर डी है। तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द राइट टू फिक्स द फूड ग्रेन्स प्राइस, राइट? ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि दैट एक्ट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ नेशनल फूड कमीशन ओनली, नॉट अ स्टेट फूड कमीशन। तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। द आंसर इज डी। यू कैन रीड हियर। Next question, which of the following are the provisions enumerated under the recently unveiled National Education Policy 2020 in India? First, it aims to bring children from ages 3 to 6 years within the formal education system for the first time. Third, second, it seeks to promote the vocational training and internship among the school students. Third, it aims to promote the mother tongue as a medium of instruction for school students up to the class 5th. तो देखो तीनों ही स्टेटमेंट राइट, बिकॉज आपने अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखी है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस पे आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन तो ना सिर्फ प्रीलिम में बल्कि मेंस में भी पूछा जाने वाला है, राइट? क्योंकि आप 20-25 साल बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है, राइट? तो तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूथ को स्किल हुनर मिले, इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग उनको स्कूल से दी जाएगी। You can read here. 6 से 14 साल the new education policy expand the age group of 6 to 14 years of mandatory schooling and 3 to 18 years of schooling. The new education policy introduces hitherto uncovered 3 years of pre-schooling age group 3 to 6, and the policy document states that the children learn and grasp non-trivial concept more quickly in their home languages. So mother tongue में उनको 5वीं तक के दिया जाएगा एजुकेशन। Next question, consider the following statement about the permanent settlement system in British India. This is a modern Indian history से का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, जमींदार वर नॉट रिकग्नाइज एज द ओनर्स ऑफ लैंड बट ओनली एज अ रेवेन्यू कलेक्टर्स, यानी कि जमींदार अपने जमीन के मालिक नहीं थे, ओनर यानी मालिक, सिर्फ वो रेवेन्यू कलेक्टर थे। ये स्टेटमेंट ओनली आ गया तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। Next, judicial and policing powers of zamindars were enhanced to help them recover more revenue. Judicial and policing power. Judicial का काम है क्या? Revenue collect करना, ये भी wrong है। Third, the revenue demand of the state was fixed. Yes, permanent settlement indicate कर रहा, तो in a permanent settlement ना the revenue was fixed. टैक्सेस फिक्स थे कि उतना टैक्स तुम्हारा लैंड का प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ वो 2 नंबर की बात है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। किसानों पे ये अत्याचार होता था। चौथा स्टेटमेंट, द स्टेट्स विच वर अनेबल टू पे द रेंट वर ऑक्शन्ड अंडर द सनसेट क्लॉज। थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, सो आंसर इज डी।
यू कैन रीड हियर, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जनरली यूपीएससी प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन करता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। फर्स्ट, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यस, इंटरनेट का फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल नेटवर्क, तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट, राइट। हम इंटरनेट कनेक्शन हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में है, तभी हम www एक्सेस करके कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। थर्ड, इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ द www, नो, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट, तो स्टेटमेंट थर्ड को आप रिमूव करो तो आपका आंसर बचता है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question, with reference to section 7 of RBI Act, first, section 7 authorize any state government to direct RBI, any state government, no, हर एक स्टेट के पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं है। सेकेंड, section 7 of RBI Act never used since inception of law, this statement, क्योंकि लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था, this is second statement right। Third, section 7 of RBI Act empowers president to issue directions to RBI, no, section 7 of RBI Act empowers the central government to issue direction to RBI, not president। तो आप स्टेटमेंट थर्ड और फर्स्ट को रिमूव कर दो तो आपके पास बचेगा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि RBI का सेक्शन 7 आज तक के कभी यूज़ नहीं हुआ पिछले 70-75 सालों में, है ना। तो आंसर इज ए, ओनली 2 मीन्स आंसर इज ए। इस तरीके से यूपीएससी बहुत ही हॉट टॉपिक पे मैं ये एमसीक्यू बना रहा हूँ और ये गारंटी देता हूँ कि इसमें से एक आध दो क्वेश्चन तो आपको आएगा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आउटलाइन द नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द आरबीआई टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिजनेस करस्पॉन्डेंस सिस्टम, लीड बैंक स्कीम, बेसिक सेविंग अकाउंट्स एंड प्रोमोट करेक्टिव एक्शन। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, लेकिन प्रोम करेक्टिव एक्शन के जरिए क्या होता है, ये एनपीए को कम करने के लिए, जो लोग बैंकों का लोन बहुत बढ़ गया है ना, तो वो बैंक कैसे उनके लोन्स को कम करे, तो ये प्रोम करेक्टिव एक्शन आरबीआई उनको दिया है। तो फोर्थ को आप निकाल लो, 1 2 3, आंसर इज ए, यू कैन रीड हियर, प्रोम करेक्टिव एक्शन फॉर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए, राइट। सो आई होप स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके यूपीएससी प्रीलिम 2021 में पूछा ही जाएगा। आप लिख के रख लो कहीं पे भी कि पूछा जाता है कि नहीं, क्योंकि हम बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के फ़ौरन ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि तभी भी हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।